Just 1 second. Sir, Okay, can we then start? you can start. Yes, yes, Okay. you can. Very warm welcome to everyone on the platform of Veda U, and we are celebrating Thyroid Awareness Week in this week, and another new speaker with us. Last time we did functions of thyroid with Ayurveda perspective from Dr. Vishnu Dogdekar sir, and today we have a Dr. Rahul Madhava sir with a new topic, thyroid and mental health. In collaboration with Jagruvi Herbal, they have a Jagruvi Churna, as well as in collaboration with Harsh Products, Thysset. Thysset is specially for thyroid. It's a good combination of different Ayurvedic herbs like Bilvapan, Trifala Kutki Mula, Bhumamlaki Bhuikola, Jatamansi, Shatavari, means to break the pathophysiology of hypothyroidism and good insulin resistance helps to reduce insulin resistance as well as menopause like other complicated diseases also it is covering. So please do prescribe. Those are doctors here. The Thysine. And again, we are coming towards our topic, Thyroid Awareness Week. First, I will introduce Dr. Rahul Parva, sir. He is my senior from Sumati Bhaisha Ayurved College. So he is MD in Ayurveda in anatomy subject, as well as he is renowned. He's student of Dr. Gadgil sir, who is famous for cancer treatment, and he is a very good student of Gadgil sir. As well as he is practicing since 10 years in Ghatkopar. He is having his own practice, Veda Health Bliss, Ayurveda Ghatkopar, as well as he is co-founder and Avati at Kolaba. So we are proud of you, sir, that you are practicing as well as he is specialist in constitution-based Ayurveda medicines, Panchadharma, and diet modifications. Okay, thank you very much, sir, for your valuable time. And dice is yours today for thyroid and mental health. We would like to hear you from mental health aspect and thyroid. Thank you so much. So, hey, good evening, everyone. Welcome to this very special session. The topic of this session is one of the most widely discussed topic, thyroid and mental health issue. Most of us, knowingly or unknowingly, are having mental issues, and many of us would agree that once we Google these minor symptoms, what the next thing pops up is like something very grave. कुछ तो मुझे बहुत बुरा हो गया है, मेरा तो लाइफ ही खत्म हो गया है। ऐसे टाइप्स के सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं या हमें ऐसा फीलिंग दिखा दिया जाता है जस्ट बिकॉज वी गूगल देम। एंड these range from simple metabolic disorders like thyroid to a wide range of grave disorders like depression and other issues. So therefore, the whole challenge is right now to educate you कि what exactly is a symptom and what exactly is a disease. डॉक्टर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उसको पता होता है कि साइन और सिम्टम में क्या फर्क है, कौन सा स्टार्ट है और कौन सा बड़ी बीमारी का एक पार्ट है। वो समझाने के लिए यू ऑलवेज नीड अ डॉक्टर, यू कैन गूगल इट और डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ थिंग्स। So the whole idea of this session is to educate you when it's a mental issue or just a symptom, I would say, and when it's a sign of a disease of maybe thyroid or any kind of depression or something. And therefore, in order to help you and do this, I, Dr. Rahul Marwa, an expert in the field of constitutional-based Ayurveda treatment, would be taking you on this journey to understand the basics and the probability of its treatment in Ayurveda. So before I move ahead, with your permission, I would just like to introduce myself. So my name is Dr. Rahul Marwa, as you must have already known. I'm an MD in Ayurveda and been practicing since last 10 years in Mumbai.
So I have two small babies, I would say. One is 10-year-old, that is Veda Health Ayurveda, located at Ghatkopar, which is majorly focusing on migraine and metabolic disorders. And the second baby is relatively new, which is named as Avoti Karya. It's a Greek name, meaning being very specific to the person or as per the requirement of the person. That's the Greek version of apothecare, and focusing only on hair and skin. So we are the first fusion, you can say, of Ayurveda salon and wellness located at Kolaba, which is a prime area in Mumbai. I was also the associated with Rajawadi Hospital in Ghatkopar as an ordinary Ayurvedic physician, which till date I am, but due to Corona, मेरी छुट्टी चालू है. Was also associated with Sefi Hospital as a senior Ayurvedic physician in the Center for Alternative Medicine for 3 years. I have also done my course in post-graduation in Shar Sutra, which is a type of anorectal disorders in Ayurveda. The most important one, I have also done medical vermology. If you must have seen, there is something known as Kararipattu martial arts in India, especially practiced in Kerala. So the medical aspect of it, which is Verma or the Marma technique, I have learned the basic in that. Until date, I have almost seen more than 6,000 plus patients in different aspects of Ayurveda. Next, please. So मेरे बारे में बहुत हुआ. Let's start with the basics. So next thing, please. Hello. Am I audible? Okay. So what exactly do we mean by health? Okay, thank you. So when we say what is health, हमारे दिमाग में हेल्दी होने का बहुत सवाल होता है कि मुझे ये वेट लॉस करना है, मेरे हार्ट को ताकत देनी है, मेरे को मेरा मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना है. हम जितना भी यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं लोगों को करते हुए, अरे ये आदमी ने इतना मैराथन भाग लिया, मैं भी कल से मैराथन की प्रैक्टिस शुरू करूँगा. बॉडी साथ दे ना दे, कभी जिंदगी में 2 किलोमीटर चले भी ना हो, पर भाई सबको मैराथन भागना है. या फिर किसी का सुना कि उसका ये ऑर्गन फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो नहीं मेरे को भी कार्डियो करना है, कुछ भी हो जाए, आई नीड टू गेट फिट. ये सब जो भूत सवार होते हैं ना, इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उसके हिसाब से स्पेसिफिक डाइट, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, कुछ भी जो हमें यूट्यूब पे या फिर डू इट योरसेल्फ दिखता है वो शुरू करते हैं. नहीं तो ऐसे टाइप के आजकल जिसको नीच कैटेगरी बोलते हैं कि भाई सिर्फ मैं इतना ही देखता हूँ, ऐसे लोगों से हम जाके मिलते हैं और फिर वो आपको गाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है आप ऐसा करो वैसा करो, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट. बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? व्हेन यू सडनली गेट एन अनहेल्दी अटैक. लाइक वेरी रिसेंट एग्जांपल बीइंग सौरव गांगुली, जो इतना फिट है, सब कुछ करते हुए भी ही गॉट एन हार्ट अटैक. या फिर कितने आप लोगों ने तो देखे होंगे या सुने होंगे जो अचानक एक्सरसाइज करते करते कार्डियक अरेस्ट में गए और डेथ हो गई. ऐसा क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हेल्थ की डेफिनेशन ही गलत है. जो हमारा परसेप्शन है, हमारे परसेप्शन की हेल्थ और एक्चुअल हेल्थ, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. और सबसे ब्यूटीफुल अगर डेफिनेशन आपको हेल्थ की मिलेगी तो वो आपको आयुर्वेदा में आज की तारीख में मिलेगी. मैं आयुर्वेदा का हूँ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ. आपकी रिसेंट जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है उसके अंदर भी ये सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, एक्सेप्ट फॉर वन जो सिर्फ आयुर्वेद की ब्यूटी है. के बारे में भी मैं आपको आगे समझाऊंगा. सो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद क्या कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ या स्वस्थ. स्वस्थ यानी क्या है? समदोष, सम आग्नि, समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, स्वस्थ इत्यपि उच्यते. यानी बैलेंस दोषस या आपके जो अंदर की हार्मनी है दोषस की वो चाहिए. अग्नि या जो आपका हर मेटाबॉलिज्म को रिक्वायर्ड जो फायर है वो अच्छा चाहिए. समधातु मल क्रिया, आपके ईच एंड एवरी टिश्यू का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, उसका नॉर्मल सिक्रीशन एक्सक्रीशन सब नॉर्मल चाहिए, या एलिमिनेशन भी नॉर्मल चाहिए. एंड लास्टली प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, यानी आपका सेंसेस, आपके जो एक्सटर्नल 5 सेंसेस हैं
एट द सेम टाइम योर माइंड और आपकी आत्मा, योर सोल हैज टू बी इन अ ब्लिसफुल कंडीशन, या शांति चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया की सब कुछ है उनके पास, बट फिर भी वो तड़प रहे होते हैं। हम कॉमनली देखते हैं, मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई हर कुछ है फिर भी दुखी है क्योंकि उसका फैमिली मेंबर कुछ नहीं कर रहा है। या तो वो कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो फिर उसके पास बिल्कुल फाइनेंशियली वो अनस्टेबल है, या तो वो फाइनेंशियली पूरी तरह से अनस्टेबल है, इसके लिए वो चैन से जी नहीं पा रहा है। कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे वो अनहैप्पी है या पीस पे नहीं है। और इसी के लिए लोग फिर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये बाबा जी को मिलो, वो बाबा जी को मिलो, इसके क्या बोलते हैं, ये मंदिर में माथा टेको। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एट द एंड फॉर योर ह्यूमन बीइंग इट्स ऑलवेज पीस दैट मैटर्स द मोस्ट। और वो पीस पाने के लिए वो ये नहीं सोच पाता कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो बस यही देखता है कि शायद एक्सटर्नल किसी चीज से मेरा काम हो जाए, बट ऐसे होता नहीं है। और ये क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है बैलेंस की, वो एक्चुअल बैलेंस की नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक अ सीसॉ। मतलब सीसॉ आप ऐसा रख दो सीधा तो आपकी लाइफ बैलेंस है, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर एक्चुअली डीलिंग विद ह्यूमन बॉडी, एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरह का बैलेंस करना पड़ता है। मराठी में उसको तारेवरची कसरत बोलते हैं। मतलब एक छोटी सी रोप के ऊपर आपको बैलेंस करते करते चलना पड़ता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, इस हिसाब से। और वो होने के कारण जो एक्चुअल डेफिनेशन है बैलेंस का, इट्स नॉट बीइंग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे उसको हम ये बोलेंगे कि सॉरी, जैसे हम लोग बैलेंस कहते हैं इंग्लिश में उसको, सम को, एक्चुअली इट्स अ एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। आपको कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी हेल्दी कभी अनहेल्दी, उस हिसाब से वो बैलेंस करते करते गाड़ी आगे जाने वाली है। सो इट्स एक्चुअली मेंटेनिंग द हार्मनी, बट ऑलवेज विद एन एफर्ट। विदाउट एफर्ट you cannot attain anything. Just get it very clear. And this effort, it's not just having one or two aspects. It's always 9 aspects or 9-dimensional balance that you have to do. And so therefore, in Ayurveda, when you have a natural biological clock, there are 6 fluctuations throughout the 24 hours. 6 फ्लक्चुएशंस होते हैं 24 घंटे के अंदर, और आपके शरीर को वो 24 घंटे सॉरी वो 6 फ्लक्चुएशंस को बैलेंस करना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो ही बॉडी एकदम ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन करेगी। एंड दिस इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट थिंग्स लाइक ईटिंग एट राइट टाइम, हैविंग द राइट काइंड ऑफ फूड, ड्रिंकिंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर। याद रखिएगा पानी बहुत नहीं पीना होता है, ये आउट ऑफ द वे है, बट जस्ट रिमेंबर पानी कम पीना होता है। स्लीपिंग अर्ली एट नाइट एक्सेट्रा, एंड दिस बिकम्स सो क्रूशियल कि वंस यूजुअली वी टेंड टू इग्नोर इट कि छोड़ना कुछ नहीं होता है, आज कर लिया कल देखेंगे परसों देखेंगे। बट when it becomes a compulsion, especially when you get into critical illnesses like cancer or renal disorders or any such thing, उस वक्त में हमको ध्यान में आता है कि यार काश ये कर लिया होता तो ठीक रहते। Therefore, without efforts, don't expect yourself to be healthy. And efforts के लिए कोई जादू की छड़ी, बिना efforts के कोई जादू की छड़ी नहीं मिलेगी कि इसको घुमाया आप हेल्दी हो गए, या अलादीन का चिराग में से चीनी निकला और आप लोग को उसने हेल्दी बना दिया। ऐसा कभी होने नहीं वाला है। उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली काम करना है। कोई भी पिल या कोई भी डाइट पॉपअप करके वो नहीं होगा। एंड हर बार में सभी फैक्टर्स का वो सम टोटल होता है, कोई भी एक फैक्टर से वो नहीं होता। इट्स लाइक इंडियन क्रिकेट टीम विनिंग द टेस्ट मैच, जैसे कल हमने देखा, टीम एफर्ट होता है। सो इसके लिए जो 9 डायमेंशंस या 9 एस्पेक्ट्स रहते हैं, उन सभी के ऊपर से हमें ध्यान देना पड़ता है। बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग कोरोना जो इस वक्त में है। हमने कितनी भी प्रिकॉशन की, कुछ भी किया, बट कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट ऐसा होता है जो टाइम का डायमेंशन होता है कि हालत बिगड़ने वाली है। और वो मतलब आपकी कितनी भी प्रोटेक्शन लो, कई लोग बिना बात के भी कोरोना से अफेक्ट हो गए हैं।
सो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक चीज करने से कभी काम नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। सिमिलरली जब थायराइड जैसी इश्यूज आते हैं, इसको हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। लेट इट बी हाइपोथायरॉयडिज्म और लेट इट बी हाइपरथायरॉयडिज्म, these are actually a byproducts of your lifestyle. Remember this. जेनेटिक का होना बहुत कम है। लोगों को जेनेटिक का लेबल लगाना बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली इतना जेनेटिकली नहीं होता है जितना ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और दूसरी एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि जो चीज बचपन से ठीक चल रही थी, अचानक उसको बिगड़ने के लिए क्या हुआ। कल तक आपका थायराइड से अप टू द एज ऑफ 20-25 या प्रेगनेंसी के पहले तक आपका थायराइड अच्छा भला काम कर रहा था, अचानक वो बिगड़ क्यों गया, इस पे ध्यान देना जरूरी है। हमें लगता है कि नहीं बस वो हो गया, प्रेगनेंसी हो गई तो हो गया, या फिर होना था, ये सभी को होता है तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। कई बार माइनर सिम्टम्स आते हैं जिसको हम लंबे समय तक इग्नोर करते हैं, और वो इग्नोर होने के बाद में हमें फाइनली जब पता चलता है कि ओके हमारा थायराइड जो है वो बिगड़ गया है, फिर हमको ध्यान में आता है अच्छा कुछ करना चाहिए इसके लिए, बट तभी तक देर काफ़ी हो जाती है। और वो नॉर्मली जो स्लो फंक्शनिंग या क्या बोलते हैं छोटे सिम्टम्स होते हैं, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन का रूप ले लेते हैं जिसको डिसीज बोलते हैं। उसमें अगर स्लो फंक्शनिंग है तो हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे सिम्टम आ जाएंगे, फास्ट फंक्शनिंग है या ओवर एक्टिव है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एबनॉर्मलिटी के कारण हाइपर थायरॉयडिज्म आ जाएगा। और दोनों के दोनों का जो रीज़न है वो हमारी डेली रूटीन्स में दिखाई देता है। हम जो भी खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या आइज से या हमारे सेंसेस से कंज्यूम करते हैं, वो सभी के सभी इसको एलिवेट करते हैं। एंड देन यू स्टार्ट बिकमिंग फिजिकली, इनिशियल आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हो। हाइपोथायरॉयडिज्म रहेगा तो आप मोटे हो जाओगे, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा, आप दुबले पतले हो जाओगे, बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड देन क्योंकि ये फिजिकली या एस्थेटिकली आपकी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू होता है, स्लो एंड स्टडीली आप में मेंटल इश्यूज डेवलप होना शुरू होते हैं। और जब ये मेंटल इश्यूज में कन्वर्ट होता है, देन इट बिकम्स मोर ग्रेव, क्योंकि अब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आप कंट्रोल के बाहर जाना शुरू हो रहे हो, और वो आपको तकलीफ देता है। जनरली हम लोग ऐसे समझते, मतलब आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो भी बीमारी होती है वो शरीर से मन को अफेक्ट करती है, या उल्टा मन से शरीर को भी अफेक्ट करती है, या माइंड से शरीर को भी अफेक्ट करती है। इसी के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ओवर थिंकर्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह वाले, वो लोग खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एंड देन दे स्टार्ट हैविंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ना, लाइफ में क्या करना है, खाओ पियो ऐश करो, और वो खाते 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 एक फाइन डे उनका मेंटालिटी ऐसे बन जाता है कि दे बिकम टू लेथार्जिक, टू डिप्रेस्ड, क्योंकि उन्होंने उसके आगे कभी लाइफ देखी नहीं थी। इसके लिए ध्यान रखना है कि फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट का बैलेंस करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि फिजिकल चीज़ों को एस्थेटिक वैल्यू है, इसके लिए हम लोग मेंटल हेल्थ को मेडिकली, आई वुड रिपीट मेडिकली, बहुत अंडररेट करते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो क्या बोलते हैं एक लेमैन की लाइफ जो रहती है, उसके अंदर हम मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा आजकल एग्जैगरेट करना शुरू करते हैं। मतलब 9 साल की बच्ची मेरे को आके बोलती है कि आई एम डिप्रेस्ड, एंड आई एम लाइक तेरी उम्र कितनी है अभी, तूने दुनिया क्या देखी है। बट नहीं, आई एम डिप्रेस्ड क्यों? क्योंकि उन्होंने नेट पे गूगल किया होता है कि डिप्रेशन के ये सिम्टम्स है, डिप्रेशन ऐसा होता है, सो आई एम डिप्रेस्ड। सो उनको ये माथे पे ना लेबल लगा के घूमने में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि दे गेट अटेंशन। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों में, इट्स दैट दे सीक अटेंशन। अटेंशन ओनली बिकॉज एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ बीइंग लोनली, या अकेलापन हर एक को नहीं सहन होता, और उसके कारण वो अटेंशन सीख करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे
लोगों की हैप्पी हैप्पी पिक्चर्स देख के उनको लगता है उनकी लाइफ में तो काम से ही गई है। इस कारण से उनके अंदर फियर एंड फियर के आगे के सारे रिएक्शंस क्रिएट होते हैं और वो लोग उतना ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल बनने लगते हैं। एंड सेकेंडली स्पेशली इन हाई क्लास सोसाइटी आजकल तो ऐसा हो गया कि मेरे को दवाइयाँ खाना मतलब मेरा सोशल स्टेटस बन गया है। मेरा ब्लड प्रेशर का दवाई है, मेरा थायराइड का दवाई है, मेरा डिप्रेशन का दवाई है। सो पीपल फील कि इट्स अ सोशल स्टेटस, मेरे को डिप्रेशन नहीं हुआ तो मतलब आई एम सो मिडिल क्लास या लोअर क्लास। बट लोग ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली यू आर फॉलिंग इन अ वेरी बिग ट्रैप। एंड क्या बोलते हैं, because of this unawareness usually जो सिंपल हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम लोग उसको एग्जैगरेट कर करके या तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सैडनेस में जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको ऐसे लगता है ये छोटा सा सिम्टम भी हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो गया है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये समझना कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली मेंटल इलनेस या मेंटल आदमी को हम मेंटल कब बोलते हैं, उसको मेंटल कुछ इशू हुआ है, ये कब कहा जाता है कि जब उसका थिंकिंग, उसकी फीलिंग या उसका बिहेवियर या कॉम्बिनेशन में ये आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर डिसेबिलिटी या डिस्ट्रेस क्रिएट करने लगता है। फिर वो भले सोशल में हो, वर्क में हो, फैमिली एक्टिविटीज में, किस में भी हो, आप जैसे सोचते हो, जैसे फील करते हो और जैसे बिहेव करते हो, वो इन तीनों में अगर या इन तीनों में से कुछ कॉम्बिनेशन के अंदर या किसी एक के अंदर अगर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, यू शुड अंडरस्टैंड कि मेंटली कुछ इशू है। ये मेंटल इशू क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी इलनेस की तरफ हो, बट अगर नजरअंदाज किया जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम से बड़ी इलनेसेस की तरफ लेके जाता है। एंड थायराइड रिलेटेड में ये ज़्यादातर मतलब अगर आप किसी को पूछेंगे कि मुझे थायराइड की बीमारी हो गई है कि नहीं हुई है, तो हमें समझना पड़ेगा कि थायराइड के अंदर सिर्फ एक या दो सिम्टम्स देख के ये काम नहीं होने वाला है। इट विल बी ऑलवेज अ क्लब और अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट विल ऑलवेज बी ट्रबलिंग यू। तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें होता क्या है बेसिकली, तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। आप जो है बेसिक इसमें ध्यान रखिएगा कि एक छोटा सा सिम्टम यानी मैं भूल जाती हूँ, अगर इसको पकड़ के आप सोचोगे कि मेरे को थायराइड की बीमारी हो गई है, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि कई बार हमारा दिमाग दूसरी तरफ ऑक्यूपाइड रहता है एंड उसके कारण हम चीजें भूल जाते हैं। लॉजिक है, मैं कोई अलग नहीं बोल रहा, लॉजिकल चीज सोचो कि हम क्यों भूलते हैं, क्योंकि हमारा कई बार ध्यान कहीं और रहता है, इसके लिए हम चीजें भूल जाते हैं। बट जब आप रिपीटेडली चीजें भूल रहे हो, प्लस मेंटली जो आपकी कैपेबिलिटी थी, आप जो काम कर सकते थे, आपसे वो अभी नहीं हो रहा है। आप पहले समझिए एक बार में कम से कम 10 चीजें कर सकते थे एक के बाद एक, आज आपसे सिर्फ 2 या 3 हो रही है। आप मेंटली थक जाते हो वो 2-3 करते हुए भी, प्लस आपका अटेंशन नहीं आ रहा है कि मेरे को करना क्या, कंफ्यूजन काइंड ऑफ सिनेरियो है। उस कारण से थोड़ा काम करके भी ऐसे लग रहा है बहुत काम किया, ऐसा फटीग आ रहा है। या फिर आप इमोशनली बहुत ज्यादा चिड़चिड़, बहुत ज्यादा सैड ऐसे होने शुरू हो गए हो, देन इट माइट बी थायराइड इशू। बट इनमें से सिर्फ एक रहा या मैक्सिमम 2 रहे, डोंट थिंक यू हैव थायराइड, ओनली बिकॉज हमेशा एक चीज से बढ़ते बढ़ते वो बड़ी की तरफ जाती है। आपको अगर इतने में ही आपने उसको कट डाउन कर लिया या उसको ठीक कर लिया, आपका ये प्रॉब्लम वहीं का वहीं सॉल्व हो जाएगा। थायराइड की बीमारी या थायराइड की बीमारी के लिए दवाई खाना जिंदगी भर, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। यू आर जस्ट उसको दबा के रख रहे हो और उसी के लिए आपको कोशिश करना है कि कैसे उसमें से बाहर आना है। लास्टली
जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब आप फॉरगेटफुल हो, फटीग हो रहा है, मेंटल स्लोनेस है, इनअटेंशन है, इमोशनल लाइबिलिटी से, और ये लंबे समय तक क्रॉनिसिटी आती है, देन इट टेंड्स टू गेट इनटू डिप्रेशन। और ये जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, इसके कारण कई बार आपको हेलुसिनेशंस या डेल्यूशंस तक जाता है। आदमी को जो नहीं दिख रहा है किसी और को, उसे वो दिखाई देने लगता है। इट माइट बी किसी की, मतलब उनके जो सबसे क्लोज रहेंगे और उनकी डेथ हो गई होगी, उनको वो सामने दिख रहे हैं, या फिर वो संजय दत्त को जैसे महात्मा गांधी दिखाई देते हैं, वैसे काइंड की डेल्यूशंस और हेलुसिनेशंस में आदमी जीने लगता है। वहां पे आपको थायराइड की दवाई देके ट्रीट होना जरूरी होता है। आप फिर भले आयुर्वेदिक लीजिए, आप भले एलोपैथिक लीजिए, बट वहां पे वो थायराइड को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो मास्टर ग्लैंड है, ये इन सब, मतलब इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ये मास्टर ग्लैंड में अभी तकलीफ हो गई है। यानी इनको जो रेगुलेट करता है, जो इनका बॉस है, वही करप्ट हो गया है, और इसके लिए इनको उसको सुधारने के लिए आपको दवाइयों की जरूरत है। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर हो गया, या आपका थायराइड का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो कॉमनली क्या है, तो इरिटेबिलिटी बहुत कॉमनली होता है। हमको ऐसे ही हम इरिटेटेड रहते हैं, क्योंकि हमारे पे वर्क प्रेशर बहुत है, कामों का ज़रूरत से ज़्यादा हम काम हाथ में लेके बैठे होते हैं, और प्लस 24 घंटे में हमको लगता है हम सुपरमैन है, हम सब कुछ निपटा सकते हैं। इसके लिए हम इरिटेटेड रहते हैं। बट वो इरिटेबिलिटी के साथ एंजाइटी अगर आपको आ जाए, आप बेवजह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा एंशियस होना शुरू हो जाओ, या रेस्टलेस बनना शुरू हो जाओ, और इस सब के कारण आपको नींद आना बंद हो जाए, और क्योंकि आपकी रात को नींद नहीं हो रही, इसके लिए आप सुबह थके हुए हो, और ये थकावट के कारण आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी जा रहा है या बिगड़ रहा है, भले एपिसोडिक हो या फिर मेनिया मेनिया कहूंगा तो मतलब पागलपन की तरफ लेके जाने वाला हो, या डिप्रेशन या डेलीरियम हो। डेलीरियम में समझ में नहीं आता मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, एक्सेट्रा। तो ये सब के वक्त में आपको ये प्रॉब्लम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए है, उसकी दवाई करना या उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिए, ये जितने भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिकली, जो इसमें बहुत है, बट प्रैक्टिकली जो चीजें दिखती हैं या हमें कॉमनली इरिटेट करती हैं, मैं उन्हीं की तरफ आपका ध्यान लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो आपको वो मेडिकली समझना बहुत मुश्किल है। बट ये कॉमन सिम्टम्स है जो हम डे टू डे देखते हैं, समझते हैं, या हम उसमें से जा रहे होते हैं। हमें उसमें से समझना होता है कि हम इसमें से कहाँ हैं, और क्या रियली हमें मेडिकली देखना चाहिए कि थायराइड का इशू है या नहीं, या रियली हमें देखना चाहिए कि बस एक सिम्टम है और उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि नहीं। दूसरी एक चीज मैं बता कर रखूंगा, कभी भी थायराइड का मेडिसिन मतलब आपको आज आपकी रिपोर्ट में थायराइड का इशू दिखाई दिया है, आप नेक्स्ट 6 मंथ्स तक कोई मेडिसिन मत लीजिए। आप सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आइए। आफ्टर 6 मंथ्स भी अगर वो परसिस्टेंट होता है, ओनली देन यू नीड टू स्टार्ट मेडिसिन। मैं 6 मंथ्स इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो भी चेंज लेके आएंगे आपकी लाइफस्टाइल में, थायराइड ग्लैंड या उसके आसपास का जो भी फंक्शंस है, उसमें रिफ्लेक्ट होने को मेडिकली 3 महीने का टाइम लगता ही लगता है। इसी के लिए जो थायराइड प्रोफाइल है वो हमेशा 3 महीने बाद कराई जाती है, नॉट एवरी मंथ। इसके लिए आप जब चेंज लाते हो तो फर्स्ट 3 मंथ बाद आप एक टेस्ट करो, लुक इनटू द रिजल्ट्स, फिर 3 महीने बाद एक करो, लुक इनटू द रिजल्ट्स। अगर स्टिल वो परसिस्टेंट है, वही लेवल्स पे कर रहा है काम, आपने काफी चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में और सब कुछ, और तभी भी आपका परसिस्टेंट है, ओनली देन स्टार्ट मेडिकेशन। प्रॉब्लम क्या है, मेडिकेशन देके आप उस ग्लैंड को एक अपाहिज इंसान की तरह क्रिपल्ड बना रहे हो। आप उसके हाथ में ऐसे काठी दे रहे हो और बोलते चल तू चला ले, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस तू तेरा देख ले। ऐसे चल नहीं सकता है। और इसी के लिए उस ग्लैंड को आदत लगाने से पहले आपका काम है कि उसको खुद से चलाने की कोशिश करो। एक चीज ध्यान रखिए कि दवाई का काम बहुत छोटा होता है। दवाई का काम है जब आप गिरते हो, आपको हाथ देके आपको खड़ा करना है, बस उतना ही उसका काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन
कभी मैं सजेस्ट नहीं करता पर्सनली, ना आपने कभी लेनी चाहिए, चाहे वो थायराइड के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो। हम आयुर्वेद में रसायन नाम से कुछ चीजें देते हैं, और वो जो होती है वो रिजुविनेटर्स होते हैं। उनका क्वांटिटी ऐसे होता है कि इट्स दे रिप्लेस फूड, या उस हिसाब से बॉडी को फूड को रिप्लेस करके बॉडी में अच्छी चीजें क्रिएट करते हैं। इसी के लिए उनका नाम रसायन है, उनका नाम मेडिसिन नहीं, औषधि करके उनको कभी नहीं बोला, उनको रसायन करके ही नाम दिया गया है। और उस हिसाब से आपका अगर थायराइड मेटाबॉलिज्म ज्यादा है या कम है, उस हिसाब से जब आप ठीक होना शुरू हो जाते हो तो वैसे आपको रसायन देके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मेनी टाइम्स थायराइड के मेंटल डिसऑर्डर्स में भी फास्टिंग इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, ये याद रखिएगा। फास्टिंग से मैं जब कहता हूँ तो उसमें एक सिंपल फास्टिंग होता है कि रात को जो है हल्का खाना है, एंड हल्का खाने में इडली, मेदू वड़ा, डोसा ये सब नहीं आते हैं। उसमें चावल की खिचड़ी आती है, नहीं तो उपमा आता है, गुजराती में थुल्ली बोलते हैं या हिंदी में दलिया बोलते हैं, ऐसी चीजें आती हैं। और वो भी शाम को 7 बजे तक बिफोर सनसेट खाना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ इतना चेंज भी लेके आए, आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा। लेट इट बी डायबिटीज, लेट इट बी थायराइड, लेट इट बी से रीनल इश्यूज, लेट इट बी ओबेसिटी, एनीथिंग आपको तंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब से लाइट का इन्वेंशन हुआ है, हम ह्यूमन बींग्स नेचर के अगेंस्ट जाना शुरू हो गए हैं। हमने कभी, आपने और मैंने कभी ऐसे शाम को 6-7 बजे किसी चिड़िया या उसको खाते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि दे फॉलो द नेचर। और नेचर क्या बोलता है कि जब तक मैं हूँ, लाइट है, सनलाइट है, तब तक खा लो। सनलाइट एक बार सूर्यास्त हो गया तो नहीं खाना है। इसके लिए जो जैनिज्म में चोवियर कहते हैं, इट्स द बेस्ट वे ऑफ स्टेइंग हेल्दी। होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि हाँ चल चोवियर के वक्त थोड़ा खाएंगे, बाद में भी थोड़ा खाएंगे। ऐसा मत करिए। हाँ, इनिशियली इट टेक्स टाइम कि हमारी बॉडी को इस सब में अडेप्ट होने को, बट ट्रस्ट मी, मैं खुद 13 साल से ये फॉलो करता हूँ। इट चेंजेस यू अ लॉट। आपको आपके मैक्सिमम चीजें ना ऐसी सॉल्व होते दिखाई देंगी। इसके लिए कोशिश करिए 24 या सनसेट के पहले खाना एक कंपल्शन बना लीजिए। अनलेस एंड अनटिल आप जॉब पे जाते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप नहीं खा सकते, देन आई अंडरस्टैंड, बट अदरवाइज मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको जल्द से जल्द खाना खा रहे हैं। और इसी के लिए जब हम आयुर्वेद के थ्रू मैनेज करने के लिए देखते हैं थायराइड के इश्यूज को, हम आयुर्वेद से मैनेज करने के बारे में देखते हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसमें 6 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहला है डायग्नोसिस, कि ये क्यों हुआ है, उसका रूट कॉज क्या है। क्योंकि जब तक रूट कॉज नहीं मिलेगा, आप भले थायराइड के कारण या किसी भी मेंटल इशू के कारण ही क्यों ना हो, आप तकलीफ में हो, उसका रूट कॉज ढूंढने पे ही हम आपको ट्रीट कर पाएंगे। कई बार छोटी छोटी चीज़ों में वो रूट कॉज चिपका होता है जो हमारी रूटीन में हो रही होती है। कॉमन एग्जाम्पल, खाना खाते वक्त कोई नैक करने वाला, मतलब कॉमनली वो सास बहू के सीरियल्स में दिखाते कि बहू खाना खाने लगती, पीछे से सास कुछ बोलती है, बहू का मन बिगड़ जाता है और उस कारण से उससे खाना नहीं खाया जाता है, या जो भी ऐसे चीजें होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये एनवायरनमेंट भी आपको बहुत मैटर करता है। ईर्ष्या उसे कहते हैं संस्कृत में, या जेलेसी। मतलब ये अच्छा खाना खा रही हो, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि सी आई एम हैविंग दिस, और आप यहाँ पे उबले हुए मूंग दाल खा रहे होते हो, आपको बुरा लगता है। इसी के लिए हमेशा बोलते हैं कि खाना खाते वक्त जो है, जो मिला है उसको खुशी खुशी खाओ या एक्सेप्ट करो। और ये जो ऐसे छोटे छोटे चीजें होती हैं, ये कई बार मेंटली और फिजिकली आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। इसके लिए वहां पे उसका रूट कॉज ढूंढना और उस रूट कॉज को रेक्टिफाई करना, ये जरूरी बन जाता है। प्लस आयुर्वेद में कुछ पैरामीटर्स कहे गए, 10 पैरामीटर्स है। उन 10 पैरामीटर्स के ऊपर आपका डायग्नोसिस होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाता है, और उस हिसाब से दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि ये जादू की, मतलब जैसे थायरोनॉम आजकल जो हाइपोथायरॉयडिज्म में यूजुअली यूज होती है, आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है कि बस ये गोली खाई तो सभी का
ठीक हो जाएगा थायराइड, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें क्योर करना है, हमें सप्रेस नहीं करना है। सप्रेस करने के लिए अलग दवाइयाँ होती हैं, बट क्योर करने के लिए स्पेसिफिकली आई वुड से टेलर मेड दवाइयाँ होती हैं। इसी के लिए वहाँ पे आयुर्वेदिक बेसिस पे आपका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। जब डायग्नोसिस हो जाता है, उस हिसाब से आपको काउंसिल करना पड़ता है कि ये क्यों आपके लिए गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए डॉक्टर मेरा काउंसलिंग मतलब बात करने का 70% ऑफ द टाइम काउंसलिंग में निकल जाता है, क्योंकि लोग इतने क्वेश्चन एंड आंसर थ्रो करते हैं और इतने मिथ्स एंड बिलीव होते हैं कि कभी कभी मेरा गला सूख जाता है। मेरे को ऐसे लगता है मैं टेप रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड करके बोलती हूँ, क्वेश्चन पूछा प्ले दबा भाई, सुन लो पूरी रामायण सुनी लो मेरी। क्यों? क्योंकि लोगों के हिसाब से चीजें होना, या लोगों की इच्छा होती है कि मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, और वो नहीं हो सकती है। इसके लिए उनको समझाना पड़ता है उनकी बॉडी के लिए सही क्या है या उनके लिए सही क्या है। भले वो दूसरे के लिए गलत भी हो सकता है, उनके लिए वो जो सही है वो बताना और उनको वो समझाकर उनसे वो करवाना, ये हमारे लिए एक आई वुड से इट्स एन आर्ट फॉर अस। एंड देन कम्स योर डाइट। आपने क्या खाना है, कब खाना है, ऐसे या कितने प्रपोर्शन में खाना है, हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। आपकी भूख कितनी है, आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, और उस हिसाब से आपके लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से आप किस रीजन में रह रहे हो। आप महाराष्ट्र जैसे, लाइक मैं पंजाब से हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे पंजाबी फूड खाऊंगा ना, मैं बीमार पड़ूंगा। मुझे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अकस्टम होना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैं दूंगा तो वो है कर्ड का। लोगों को दही प्यारी है, और वो आज से नहीं है, 5,000 सालों से लोगों को दही बहुत प्यारा है। एंड ट्रस्ट मी, बॉम्बे के जैसे क्लाइमेट में आप अगर दही रेगुलरली खाना शुरू करोगे ना, आप हमेशा बीमार पड़ोगे। क्यों पड़ोगे? क्योंकि दही गर्म होता है। यस, दही गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है। टच पे दही ठंडा है, बट खाने के बाद डाइजेशन पे वो हमेशा गर्म होता है। और इसके लिए जब आप ऐसे मूड ऑफ है या फिर डिप्रेस्ड हो, तभी थोड़ा दही खाना, इस मतलब वो मिष्टी दही बोलते हैं बंगाली में, शक्कर डाल के दही बनाई जाती है या दही के अंदर शक्कर मिक्स करके खाना, दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू जस्ट लेट योर माइंड गेट काम। बट आप डेली ये नहीं खा सकोगे। आप खाओगे डेली, आपको सबसे पहला प्रॉब्लम होगा तो स्किन डिसीजेस का। बॉम्बे में स्किन डिसीज जो कॉमन है, उसका सबसे बड़ा रीजन दही है, और सेकंड है ज्यादा नमक खाना। और वही लोगों का बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें दिमाग को शांत करती है, और बॉम्बे जैसी जगह में कोई शांत नहीं बैठा हुआ। सेकेंडली, बॉम्बे का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है। इसके लिए जो भी चीज अंदर जाती है, इट बिकम्स लाइक अ मोल्टन चॉकलेट, चिपचिपा बन जाता है। और ये चिपचिपी चीजें आपके बॉडी के टिश्यूज के अंदर जाके चिपक जाती हैं, एंड देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम और अ हेल्थ इशू फॉर यू। इसके लिए उस हिसाब से आपको कब दही खाना है, कैसे खाना है, अगर खिलाना ही है तो मुझे कौन से सीजन में खाना है, वो सब हम आपको समझा के देते हैं कि ये ऐसा करिए, ऐसा करिए। देन कम्स योगा एंड एक्सरसाइज। लोग सिर्फ योगा करते हैं या सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं चल सकता। वो दोनों की ज़रूरत है। और मैंने आजकल देखा है, मतलब स्पेशली लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला लोगों को ऑब्जर्व करने का घर से। आई कुड सी पीपल डूइंग योगासन एट 9 इन, मतलब सूर्य नमस्कार रात को 9 बजे कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगा शायद यूएस में उगे हुए सूरज के लिए ये लोग अभी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो ये चीजें लोगों को लगता है कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज है या बॉडी का फंक्शनिंग सुधारना है, पर आप कभी भी उसको नहीं कर सकते, क्योंकि योगा इज नॉट एक्सरसाइज। योगा इज चित्त वृत्ति निवारणम, यानी आपकी जो थिंकिंग है उसको सुधारना या स्थिर करना, ये उसका काम है योगा का। और उसी के लिए उसको टाइम पे करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, वैसे ही एक्सरसाइज का है कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए इतने किलोमीटर रोज चलना ही चाहिए, या मैंने इतनी दूर तक जाना ही चाहिए, इतना टाइम करना ही चाहिए, नहीं करना है। ये हम समझाते हैं बेसिकली पेशेंट को। आपके फोरहेड पे, याद रखिएगा कभी भी, फोरहेड पे पसीना आ गया कि समझना आपका हार्ट इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। हमेशा यहाँ पे, पीछे, गर्दन के नीचे
आपको सबसे पहले पसीना आता है। फोरहेड पे पसीना अगर आना शुरू हुआ, इसका मतलब आपका हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू स्टॉप। भले आप 500 में 500 मीटर भी ज्यादा हो गया, 10 मीटर चले हो या फिर 10 किलोमीटर चले हो, यू हैव टू स्टॉप। एंड द मोमेंट यू स्टॉप एट दिस, आपके प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक्स के या ऐसे होने के खत्म होना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली जो डाइट और एक्सरसाइज आप करते हो, उससे आपका मेंटल जो एस्पेक्ट्स है उसमें एलिवेशन आता है। लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स इज अ वेरी बिग थिंग जो हम आज भूल गए। हम जब से बड़े हुए हैं हमने खेलना छोड़ दिया है। ना तो हम क्रिकेट खेलते हैं, ना तो बैडमिंटन खेलते, कुछ नहीं खेलते। और उस कारण से हमारे अंदर डिप्रेशन बढ़ता जाता है या साइकोलॉजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट आपके दिमाग को अगली चाल सोचने के लिए मजबूर करता है। हर एक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, किसी के लिए चेस या बिलियर्ड्स जैसी गेम्स हो सकती है, तो किसी के लिए क्रिकेट या फुटबॉल जैसा एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो सकती है। किसी की डाइट में दही आ सकता है, किसी की डाइट से दही बाहर जा सकता है। ये जो सब चीजें हैं, ये आपके उस लेवल, उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से हम आपको समझाते हैं। एंड देन कम्स डाउन इंटरनल मेडिकेशन। अगर आप देखोगे तो इंटरनल मेडिकेशन बिकम्स जस्ट 1/6 पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। यानी दवाई खाने के अलावा भी 5 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए कोई एक दवाई खा के आप ठीक हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट हैज टू बी ऑल 6 एस्पेक्ट्स गोइंग ऑल टुगेदर। तो इसके लिए इंटरनल मेडिकेशंस लेना है। कितने दिन लेना है? तो जनरली 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है कवर होने में। कुछ कुछ केसेस में 2-2.5 साल भी लग जाते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इशू टू इशू। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिटॉक्सिफिकेशन। अभी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हम लोग आयुर्वेद में पंचकर्म उसे कहते हैं। एंड पंचकर्म आजकल लोगों के लिए मसाज है और इधर तेल डालना, इतना ही पंचकर्म है। एक्चुअली वो सिर्फ उतना नहीं है, वो पंचकर्म की प्री प्रोसेस है। मतलब जैसे हम ऑपरेशन कराने अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उससे पहले जो डॉक्टर बोलते हैं ना कि आप ये टेस्ट करा के आइए, फिर ही हम ऑपरेशन करेंगे, वैसे ही जो आपका एक्चुअल डिटॉक्सिफिकेशन है, उससे पहले होने वाली प्रोसेसेस, शिरोधारा, अभ्यंग या मसाजेस, वो सब आते हैं। उसमें एक्चुअल पंचकर्म में वो चीजें इंक्लूडेड नहीं है। दे हेल्प इन गेटिंग डिटॉक्स। और ये डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी क्यों है पता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स रह जाते हैं, वो आपको मेंटली अफेक्ट करना शुरू करते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल दूंगा। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है ना, वो हमेशा चिड़चिड़ा इंसान होता है और वो अनडायग्नोज चाहता है। इसके लिए आजकल बोलते हैं कि अगर आपको बहुत बेवजह चिड़चिड़ हो रही हो, सब हो रही हो, तो आपको ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए। तो वहां पे ब्लड प्रेशर चेक करने पे पता चलता है कि अच्छा हाँ, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सो इसको दवाई देने की जरूरत है। बट आयुर्वेद के हिसाब से वो जो क्या बोलते हैं चिड़चिड़ापन है, वो कई बार एक सिंपल एसिडिटी के कारण भी होता है। आप देखिए, जिस दिन भी आपको एसिडिटी का अटैक आ रहा होगा, कॉमनली आजकल हम सभी को आ ही रहा होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीजन से आप चिड़चिड़े होते हो। आपको ऐसे लगता है कोई मुझसे बात ना करे, या अगर कोई बात करने आए तो आप उस पर बर्स्ट होते हो, या फिर आप दुनिया से दूर अलूफ होना चाहते हो, और आपका वो सिर दुखना, यहाँ पे अनईजी लगना, चेस्ट में अनईजी लगना, ये सब सिम्टम्स तैयार होते हैं। और जब आप उल्टी कर देते हो, नहीं तो वो एसिडिटी दवाई खा के बैठ जाती है, सडनली यू फील फ्रेश। तो ये जो अंदर टॉक्सिन्स हैं, या मैं उसको ना उफाड़ बोलूँगा, जब हम दूध पतीले में गर्म करने रखते हैं, तो एक लेवल आता है कि यहाँ तक अगर दूध आ गया तो गैस मतलब उबाला आके यहाँ तक ही पहुँचना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो स्पिल आउट होता है और फिर सब खराब होता है। वैसे ही बॉडी का है। बॉडी एक बर्तन समझिए, उसमें टॉक्सिन्स हैं, रोज थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। एक लेवल आएगा कि यहाँ इस तरह तक ही टॉक्सिन संभाल सकते हैं। इससे ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए, वो बाहर निकलेंगे, आपके सिस्टम में जाएंगे, फिर आपके ब्लड में चले गए तो ब्लड प्रेशर हो गया, आपके पैनक्रियास में चले गए तो डायबिटीज हो गया, आपके ब्रेन में चले गए तो ब्रेन इशू हो गया। कुछ ना कुछ करेंगे। इसके लिए वो टॉक्सिन्स को कम करना जरूरी है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि बर्तन तो आप छोटा नहीं कर सकते। आप क्या कम कर सकते? तो अंदर के टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स नेचुरली
राउंड द ईयर बढ़ते ही बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज होली के आसपास में मैक्सिमम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और ये नेचुरली फ्लेयर अप होने वाली एसिडिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठंडी का सीजन खत्म होके गर्मी का सीजन आने लगता है, जिसे हम वसंत कहते हैं। और ये वसंत में कफ जो है वो नेचुरली बढ़ के, या हम उसको उत्क्लेश कहते हैं टेक्निकली, वो शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर, और उसके लिए उस वक्त मैक्सिमम लोग ऐसे इरिटेटेड या चिड़चिड़े, या सबसे कॉमनली वो बॉम्बे की ट्रेन्स में दिखने मिलता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, लोग एक दूसरे से झगड़ना शुरू हो जाते हैं बेवजह का। और लेडीज स्पेशल डब्बे में तो 101% वो मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जो भरा हुआ है ना, आप वही स्पिल आउट करोगे। और अगर अंदर बहुत ढेर सारा कचरा भरा हुआ है ना, आप मुंह से भी कचरा ही स्पिल आउट करोगे। इसके लिए खुद का डिटॉक्स होना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए एवरी ईयर एवरीवन शुड गेट डिटॉक्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। आई रिपीट, अंडर मेडिकल सुपरविजन। मैं ये गोली खा के डिटॉक्स करूंगी या वो जल नीति करके करूंगी, प्लीज सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप तकलीफ में जाने वाले हो। मैं खुद योगा का टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि वो कितना काम करेगा, और आयुर्वेद पंचकर्म से हुआ हुआ डिटॉक्स कितना काम करेगा। इसके लिए उस बारे में आपको ध्यान रखना है। अंडर मेडिकल सुपरविजन साल में 1 या मैक्सिमम 2 टाइम आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिटॉक्स होना पड़ता है। और हमारे जो सीनियर लोग हैं हमारे फील्ड के, उनका ऐसा मानना है कि आप अगर 5 साल तक कंटिन्यूसली ऐसे डिटॉक्स होते रहते हो, तो अगले 15 साल तक आपकी बॉडी को कोई भी डिसऑर्डर या बीमारी जल्दी सता नहीं सकती है। और अगर कोई बड़ी बीमारी आ भी जाती है, आप थोड़े से एफर्ट्स में ठीक होने की हो सकते हो। इसके लिए वो ज़रूरी है कि आप अपने आप का डिटॉक्स कराइए। इसी के लिए ये 6 स्टेप से हम जाते हैं, और उस हिसाब से हम हमारे पेशेंट को क्योर करते हैं। एंड बिफोर आई जस्ट सम अप एवरीथिंग, मैं इतना ही, एक प्रोवर्ब है कि द बॉडी हील्स विद प्ले। जो शरीर है, आप उसको खेल दोगे, एक्सरसाइज दोगे या कोई भी स्पोर्ट दोगे, इट टेंड्स टू हील इटसेल्फ। कॉमन है, बच्चे खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो खेलते रहते हैं। सिमिलरली द माइंड हील्स विद लाफ्टर। जो आपका मन है उसको खुशी चाहिए। क्यों कपिल शर्मा शो आजकल इतना चलता है? बिकॉज इट हील्स योर माइंड। एंड वहाँ पे हंसी चाहिए। ये हंसी किसी शो से देखने पे सिर्फ नहीं मिलेगी, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में वो खुशी का माहौल चाहिए। आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किन लोगों के साथ एसोसिएटेड हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ ही एसोसिएटेड रहोगे, आप बीमारी पड़ोगे। आप अगर पॉजिटिव, और आपको जो रोल मॉडल्स हैं आपके, उन लोगों के साथ एसोसिएटेड रहोगे, आपका माइंड हमेशा खुश रहेगा। एंड लास्टली द स्पिरिट, आपकी जो आत्मा है ना, वो आनंद, उसको जॉय बोलते हैं, वो उससे हील होती है। और ये जॉय खाने से मिलता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ से मिलता है, पर्सनल ग्रोथ से मिलता है, फाइनेंशियल ग्रोथ से मिलता है, और आपके ड्रीम्स पूरे होने पे मिलता है। सो उस खुशी के लिए हम हमेशा कहते हैं कि यू नीड टू हैव सम पैशन, और यू नीड टू हैव सम, क्या बोलते हैं, कॉलिंग फॉर यू, कि मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ। क्यों मदर टेरेसा है, या क्यों उनको है? क्योंकि वो आनंद था उनको दूसरों को ठीक करने में। ये जो आनंद होता है, या बाबा डॉक्टर आमटे जो हैं, वो क्यों उतने खुश रहते हैं विदाउट एनीथिंग? क्योंकि वो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। और ये जो है, ये आपकी आत्मा का जो आनंद है ना, ये बहुत मैटर करता है आज के लाइफ में। इसके लिए खेलिए, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएटेड रहिए, हमेशा खुश रहिए। अपना एनवायरनमेंट अगर आप नहीं बदल सकते हो, तो आप एनवायरनमेंट के बाहर निकल के अच्छे एनवायरनमेंट में जाओ। दैट इंक्लूड्स योर पर्सनल एनवायरनमेंट ऑल्सो, ऑफिस एनवायरनमेंट ऑल्सो। एंड लास्टली, दूसरों के लिए कुछ करो। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, every mental disorder will be taken care of. आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा।
ये मेरे कुछ डिटेल्स है. Do follow us on Facebook and Instagram. These are our handles. And if there is any question, I'm open for them. Thank you so much. Yes, if you have any question, thank you, sir. If you have any question, you can post it on a chat box, or else you can WhatsApp me also on 8828220108. Thank you very much, sir. How simply you teach us about thyroid and mental health. And I think prasanna atma indriya manaha swastha ityabhidhiyate. So that line is how much important in the definition of swastha. Now everyone comes to know. Thank you so much. Any questions? Yes, so thank you, audience, for patience. Yes, yes. I think, sir, there is no question. Just Dr. Minakshi Bagal says that good interaction. She is from Ayurved, and thank you very much, sir, for your valuable time and valuable knowledge. And we would like to hear you again and again on the platform of Veda U Online. Thank you so much. And thank you so much for your patience listening. Thank you, audience. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And tomorrow at the same time, we will meet with the new speaker, Dr. Rashmi Doifode, on the topic of thyroid disorders and yoga. So we are continuing with this week of Thyroid Awareness Week. Thank you. Thank you. Thank you so much.